so that I can upload it. Yes. Okay. Now, in the previous session, we have done about the reflection of light. We have done about the luminous and non-luminous objects. These are the things that we have discussed in yesterday's class. So before proceeding, if you are having any problem, please let me know. Like my voice is clear, everyone is getting my voice properly, and the thing that I'm going to share you all, it is visible to you all. Just let me know, please. If you are not getting that, then you can let me know as well. A screen is visible to all of you. Everyone, please raise your hand or just give a message that you are getting the screen properly. Voice is clear. Okay, that's great. So moving ahead. So yesterday we had a discussion about the luminous and non-luminous objects. So luminous objects are those objects which are having the, yeah, who are this one, मुझे नाम आया था श्रुति या क्या नाम था, आगे से एनोटेट नहीं करेंगे बेटा, गलत बात है ये, है ना? Okay. Now, so we were talking about luminous object and non-luminous object. ये Y72 मैं तुमको अब रिमूव कर रहा हूँ, Xiaomi and Y72. आप अपने नाम नहीं बदल रहे हैं, मैं आपको रिमूव करता हूँ, ठीक है? आई थिंक चेंज हो गया नाम. नो, Vivo Y72 मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ, अब आप क्लास में नहीं आ पाएंगे. Xiaomi, put in waiting room. Okay. So luminous objects are those objects which are having their own light, right? That means they are reflecting, they are having their own light, like sun, like stars, candle, bulb. These kind of examples are of the example of luminous light. Then we have discussed about the non-luminous object, the objects which do not have their own light, like moon, right? Like the asteroids, they don't have their own light, right? Now, then we have discussed about the reflection of light. So what was the reflection of light? So reflection of light was basically the bouncing back of a light. It was bouncing back of ray of light from surface after striking, right? After striking. Means once a array of light has been striking, just give me a moment, please, everyone. So the reflection of light means when a ray of light has struck on a surface and it got back in the same medium, that is called reflection. Yesterday we have seen about the reflection that there are few terms. The ray of light which is falling on a surface is called incident ray. The ray which is moving away from the surface after striking the surface was called reflected ray. The ray of light which is an imaginary line basically drawn as a perpendicular to the given surface, that is called basically the normal. Then we have discussed about the laws of reflection. In the laws of reflection, we have seen there were two laws. Number one says
that this incident ray, the ray of light which is falling towards the surface, incident ray, this normal and this reflected ray are at same point, right? The incident ray, the normal at the point of incident and the reflected ray all lie in the same plane. Now, the angle of incidence is equal to the angle of reflection. This was our second law, right? This was the case what we have discussed yesterday. I think these things are very much clear to everyone, right? Everyone understood about the laws of reflection. आप सब बता सकते हो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? ऐसा कोई बच्चा जिसको अभी ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ना क्लियर हो? अगर कोई ऐसा बच्चा है then please let me know, right? We are here to give you the best. Okay. Now, coming to this image formation by a plane mirror, right? But before that, even going to this topic, I would like to discuss the type of materials what we can have. The type of materials what we can have, as Arad was telling yesterday. So types of materials what we are having, there are three different type of materials we are having. That is transparent, opaque, and translucent. I'm not sure about the spelling. Please, if there is any mistake, so please forgive me. But if you have anyone, please let me the correct spelling so that I can put that correct spelling to you all. To be very frank, I'm not aware with the spelling. Some missing confusion is there. Transculent spelling. Anyone suggest me? Yeah, that's great. That's great. Yes. Thank you. Translucent. Okay, I was pronouncing wrong. Translucent. Okay. So these are the three different type of materials what we are having, right? So what is a transparent material basically? A transparent material in which the ray of light can pass easily, right? That is called transparent material. For example, if I can show you something which is transparent in nature, that is with me. Hmm, wait a moment, please. See, for example, we are having this type of uh, polythene. See, this is a transparent material, right? Everyone getting this one? I have put this polythene in front of my camera, but still my image is clear. So why my image is clear? Because this is a transparent material, right? That is why whatever the light I'm emitting, whatever the reflection from my face is going to the camera, you are able to see my clear face, right? Yeah, Manasivali, that's wonderful. One of the example that's great, that is my glasses. They are also transparent, right? Even I was wearing it, so I didn't, my brain, I was, मुझे वो गया ही नहीं दिमाग में कि यार मेरे पास ये भी तो है एक ऑप्शन. Thank you, Manas. Okay. So these are the transparent materials जहां पर light easily आर पार हो सके, है ना? ठीक है? That is called transparent. Second, we are having the translucent. जो ट्रांसल्यूशन को कह सकते हो आप अर्धपारदर्शी, सेमी ट्रांसपेरेंट. कहने का मतलब कि ट्रांसपेरेंसी इसमें भी है, बट ये ट्रांसपेरेंसी काफी हद तक कम हो जाती है, राइट? दैट इज ट्रांसल्यूसेंट. एग्जाम्पल मेरे पास है यहाँ पर, लाइक ये फोल्डर फाइल. दिस फोल्डर फाइल इज, यू नो, translucent. Now you are not getting my proper image, right? That is what?
That is a translucent material where the transparency becomes low. And the third one that we are having, opaque. Opaque means like this one. So in that case, the object is not crossing, the light cannot cross the given object, right? That is called opaque surface. Okay. So there are three objects we are having. Can anyone tell me about the example of opaque materials? Opaque materials. Yes, everyone. That's great. That's wonderful. I want the responses from all of you. Okay. Now coming to this image formation by a plane mirror, right? If I can zoom it, let's see. Can I zoom it so that it will be more visible to you? Yes. Is it visible? I think it is now more clear than the previous one. Now see what is happening here. How can we draw this particular diagram? I'm putting this diagram. See, here a plane mirror is kept, an object is kept, right? The object is shown by yellowish in color. So there are two different rays we have used. कैसे यूज किया है और समझने की कोशिश करते हैं इसको हमें ना. आइए देखते हैं कैसे यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है. ध्यान से देखना, इसको बहुत आराम से समझना. ये एक प्लेन मिरर है हमारे पास और अपन ने किसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर कहीं पर अपने ने एक कैंडल, एक ऑब्जेक्ट ऐसे रख दिया है. ठीक है. अब इस ऑब्जेक्ट से देखिए, हमेशा याद रखिए, हमें जब भी इमेज बनानी है ना, जब भी हम डायग्राम बनाते हैं तो हमें मिनिमम दो रे ऑफ लाइट चाहिए होती है किसी भी ऑब्जेक्ट से. ठीक है. जब दो रे ऑफ लाइट हमें मिलेगी ना, तो हम उसके रिफ्लेक्शन के थ्रू जहां पर भी वो इंटरसेक्ट करते हैं या जहां पर वो इंटरसेक्ट करते हुए महसूस होते हैं, ऐसी स्थिति में हम वहां पर उसका इमेज बना सकते हैं. तो वी रिक्वायर टू रेज, राइट. तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो बेटा. एक रे हमने यहां से ले लिया, पहले वाले से देखो, डॉटेड, इस तरीके से. अब ये जो डॉटेड है ना, ये एज इट इज चला जाएगा. ठीक है. या वीरेन, यू वांट टू से समथिंग? मैसेज में करो बेटा, मैसेज में करो, मैं देखता हूं. ये ऐसे हो गया. दूसरा रे हमने कुछ इस तरीके से इंसिडेंट किया. अब यहां पर बेटा आप लगाओगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जितने एंगल पर इंसिडेंट हुआ है उतने पर ही रिफ्लेक्शन होगा. ठीक. तो ये पॉइंट को हमने पीछे बढ़ा दिया. क्यों पीछे बढ़ाया, अभी हम देखते हैं. यस, चला गया. तो ये जो पॉइंट था ना आपका ऑब्जेक्ट का हेड, ये हमें मिल गया. ठीक. नाउ सेकंड ऑब्जेक्ट का जो एंड है, हम वहां से ड्रॉ करेंगे. तो ऑब्जेक्ट के एंड से देखिए, एक रे ऑफ लाइट हमने ऐसे ड्रॉ करी, ये हॉरिजॉन्टल एकदम पैरेलल टू परपेंडिकुलर सरफेस, ये ऐसे जा रहा है. ठीक. दूसरी रे ऑफ लाइट अपन ने यहां से ऐसे इंसिडेंट कर दी. अब जब ये हमने इंसिडेंट करी इस एंगल पर, तो उतने ही एंगल पर हमको रिफ्लेक्ट दिखाना हो. ठीक. तो जब हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये कुछ ऐसे कटता हुआ जाएगा. तो ये पॉइंट मिल गया, हमने यहाँ पर इमेज को बना दिया. ठीक. अब ये दोनों जो कट रही हैं, ये यहाँ पे होगी आई. तो हमको ये इमेज यहाँ पर दिखाई पड़ रही है. ठीक. ध्यान से समझना, किसी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें किसी भी ऑब्जेक्ट में दो रेज ऑफ लाइट चाहिए होती है. क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से लंबा ऑब्जेक्ट है,
तो 2 रे ऑफ लाइट हमें टॉप के लिए चाहिए और 2 रे ऑफ लाइट हमें बॉटम के लिए चाहिए। तो हमने क्या किया, एक तो सबसे सिंपल, हमने परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर ड्रॉ कर दिया जो सीधे निकल गया, चाहे वो हम ऊपर की बात करें चाहे हम नीचे की बात करें। और दूसरा रे हमने एक एंगल पर इंसिडेंट करा दिया। ठीक। तो जब ये दोनों रे आपस में कहीं मिल रहे हैं तो हमारा टॉप मिल गया, जब नीचे के 2 रे कहीं मिल रहे हैं तो हमारा बॉटम मिल गया, और ये हमारा इमेज इस तरीके से बनकर तैयार। ये चीजें समझ में आ गई। फिर मैं क्वेश्चन पे आऊं, एक बच्चे का क्वेश्चन है कुछ। Sir, how to measure incident and reflected ray? Anshuman, this is totally based upon the source, in which direction the source is kept, right? To the mirror. इसको एक बार समझ लीजिए ध्यान से। कैसे इमेज बना हुआ है, एक बार आप सभी ट्राई करो कॉपी पर इस इमेज को स्वयं बनाने की। एक ऑब्जेक्ट रखो और उसका एक इमेज बनाने की कोशिश करो, देखो आपसे बन पा रहा है क्या। अपेक्षा, यस बताओ बताओ, मैसेज करो क्या दिक्कत हो गई। आईफोन 14 प्रो मैक्स कौन है भाई? भैया अपना नाम बदलो, नहीं तुमको हम बाहर करें क्लास से। 2-3 लोग को कर चुका हूँ, तुमको भी कर दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। आप क्लास में रहेंगे तो नाम के साथ रहेंगे, आईफोन और रियलमी ओप्पो नहीं चलेगा। आईफोन 14 प्रो मैक्स नहीं सुन रहे हो, तुमको मैं कर रहा हूँ रिमूव। चलिए, मैसेज करो सभी से, हो जाएगा, बन रहा है बेटा। अभिनव, समझ में आ रहा है बेटा? बन रहा है सभी से? वेरी गुड, ओके गार्गी, फिर से बता देता हूँ, डोंट वरी। Sir, if something has red color, then why only red color did not absorb, but all the color get absorbed? Sister, because of their wavelength, right? There's a term of wavelength and the frequency. So because of the wavelength, that particular wavelength does not absorb. That is why, right? Okay. Gargi, again coming to this topic, don't worry, right? Just give me a second. I'm sharing once more. See, just give me a moment. Huh? Now, I'm just going to draw the particular ray diagram now onwards with us, right? See how to draw the diagram. For that purpose, first we have taken a plane mirror, right? We can put this plane mirror in mid. Now, as I told you, suppose we are having any object, right? For example, this is an object what we are having. The straight object we can take. Is it clear? It is your object, right? Now, what I told you, मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा कि अपन को मिनिमम 2 रेस चाहिए। तो मैंने देखिए ये आपका हेड है, मैंने एक हेड से लाइन ड्रॉ कर दी, और एक मैंने ऐसे ही यहां से इसी को कॉपी कर लेते हैं, और इसी को हम उठाकर एक इसके टेल से क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? यहां तक सभी को समस्या क्लियर है ना? यहां तक किसी को कोई समस्या बता दो यहां तक।
आईफोन प्रो मैक्स तुम फिर से कौन आगे, पहले तुमको हम देखेंगे आराम। तुमको हम बाहर कर देंगे, रिमूव कर रहे हैं। तुम समझ नहीं रहे हो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि नाम बदलो अपना। तुम्हें नाम बदलने में समस्या, मैं तुमको रिमूव कर दूंगा क्लास से। नाम बदलो। अरे, नाम नहीं बदलता है। हाँ जी, ये हो गया। अब चूंकि मैंने आपको कहा कि मिनिमम दो लाइन चाहिए, मुझे दो रे ऑफ लाइट चाहिए, टॉप से भी और बॉटम से भी। तो देखिए, टॉप से भी एक हो गई और बॉटम से भी एक हो गई। तो अभी अपन क्या करेंगे, टॉप से एक लाइन लेंगे और बॉटम से भी एक एक लाइन लेंगे। तो टॉप से मान लो मैंने रेड कलर से दिखाया है, कलर अच्छा रहेगा तो कंफ्यूजन दूर रहेगा ना। चलो, टॉप से अपन लेते हैं एक रेड कलर की लाइट। मान लो ये रेड कलर की लाइट हमने ऐसे डाली, ये रेड कलर का दिया पिंकिश। ठीक। अब रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट जो है, इसको बदलना हो तो ये मैं बदल देता हूं, मान लीजिए। हम्म, और एक हम सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इमेजिनरी, जिससे एंगल दिखता रहे हमें। देखो ये एंगल थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा एंगल बराबर करने की कोशिश करते हैं। अब ये लमसम बराबर हो गया। ठीक है गार्गी, यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरे वाले से चाहिए होगा हमें, तो इसी का क्लोन कर लिया और हमने ये, सॉरी, इसका क्लोन, और ये क्लोन हमने यहाँ पे ले लिया और इसको हमने फ्रेम किया किसी और कलर से। चलो, मान लो, सॉरी, ये क्या हो गया, इसको इसी कलर से रहने दो। सेकंड वाले को हम करते हैं कलर चेंज। सेकंड का कलर कर दिया हमने ये, ठीक है। और इसको मैंने ना थोड़ा सा एंगल इसका बदल दिया। ठीक है, नहीं तो पैरेलल हो रहा है, तो मैं इसका एंगल थोड़ा सा और बदल देता हूँ। ठीक है। अब इसको भी मैंने क्या किया, क्लोन, और ये आ गई मेरे पास लाइट। और इस लाइट को अपन ने कर दिया चेंज। ठीक है। अब एक हम इसको टोन ड्रॉ करेंगे, और ये यहाँ पे आ गया परपेंडिकुलर। अब एंगल थोड़ा सा कम है यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा दें। ये डायग्राम क्लियर हुआ सभी को। एक ऑब्जेक्ट से दो और एक ऑब्जेक्ट से दो रे ऑफ लाइट हमने ड्रॉ करी है। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपन इस लाइन को पीछे को एक्सटेंड करेंगे। ठीक। और इस रे ऑफ लाइट को भी पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे। सॉरी। तो हमें ये देखने को मिलेगा, वेट अ मोमेंट, हाँ, थोड़ा सा, ये हमें यहाँ चाहिए, मान लीजिए। और ध्यान से देख रहे हैं। अब ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, मैं इसका क्लोन करता हूं और इसको मैं यहाँ ले आता हूं। कुछ इस तरीके से आपको इमेज देखने को मिल रही है, राइट। नाउ आई थिंक दिस शुड बी क्लियर। आईफोन 14, आपका नाम क्या है ये तो बेटा मुझे आप, चलो नाम बता दो मुझे अपना, क्या नाम है आपका। सो नाउ मुझे लगता है कि आप सभी से अब ये डायग्राम बन सकता है। आईफोन 14 प्रो मैक्स, क्या नाम है बेटा आपका। ये डॉट क्या लिखा है तुमने, नाम बताओ मुझे। देखो, अभी तक मैंने तुमको वेटिंग रूम में रखा हुआ था, आप दोबारा ज्वाइन हो गए। मैं रिमूव कर दूंगा तो आप ज्वाइन नहीं हो पाओगे। तो आप मुझे डायरेक्ट नाम बताओ अपना। तो सभी बच्चा लोग, ये तो होगी बात। अब फटाफट इस टॉपिक को लिख लो,
क्लास खत्म हो उससे पहले आप इसको फटाफट लिख लीजिए, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक जो है ये भी लिख लो, जो नीचे लिखी है, फिर हम इस पर बात करते हैं। आईफोन 14, क्या नाम है तुम्हारा? चलो नहीं बता रहे तो तुमको मैं रिमूव कर देता हूँ, कल से तुम क्लास में भी नहीं बैठ पाओगे हमारी। मैं तुम्हें करता हूँ रिमूव। आप सभी इसको पहले लिख लें, फिर हम आगे बात करते हैं। गार्गी, हैव यू डन? वेरी गुड, all of you have done. Now just try to understand this one, virtual and erect. See, virtual means whatever the alignment of the object was, according to that same alignment we will be getting for the image. Now यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, ये जो ऑब्जेक्ट है तुम्हारा कैंडल जो है यहाँ पर, अगर मैं कैंडल की बात करूं तो जो कैंडल की ओरिएंटेशन है ना, वही इमेज की भी ओरिएंटेशन है। दिस इज कॉल्ड एज इरेक्ट। वर्चुअल मीन्स क्या होता है? आफ्टर द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें रे को पीछे की ओर एक्सटेंड करना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल, है ना। जब हमें कोई चीज एज्यूम करने पड़े, ओके, एज्यूम कर लिया कि ये रे पीछे जाके यहाँ पर मिल रहा होगा, ये रियल नहीं है, ये इमेजिनेशन है, राइट। ये क्या है आपका? इमेजिनेशन है। जैसे आप लोग कभी कभी सपना देखते हो ना कि तुम मुकेश अंबानी के यहाँ पैदा हुए हो और तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का चॉपर है, तो वो इमेजिनेशन है। ये बात अलग है कि सुबह उठने के बाद तुम उसी टूटी खटिया पे पड़े हो, राइट। सो वर्चुअल थिंग, द थिंग्स दैट वी आर इमेजिन, तो ऐसे ही जब हमें किसी रे को एक्सटेंड करना पड़ता है इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो दैट इज कॉल्ड वर्चुअल। और हमेशा याद रखना बेटा, जो वर्चुअल होता है वो हमेशा इरेक्ट होता है। वर्चुअल विल बी ऑलवेज इरेक्ट। फ्यूचर में आप एक चीज पढ़ोगे, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो बस इसको ऐसे समझ लो हंसी मजाक में, जो तुमने सपना देखा है वो सपना हमेशा प्यारा होता है। तुम हमेशा मुकेश अंबानी के यहाँ पैदा हुए होते हो, या कभी प्रधानमंत्री बने होते हो, या कभी अमेरिका घूम रहे होते हो। वो तो वास्तविकता है कि सुल्तानपुर में गंदा नाला भी तुम नहीं जा रहे होते हो। तो जो भी इमेजिनेशन है तुम्हारी, वो बहुत प्यारी होगी। तो वर्चुअल के साथ कौन आएगा? इरेक्ट आएगा। और जब तुम वास्तविकता में उठते हो सुबह, मम्मी तुमको डांट के उठाती है बिस्तर से, उठ जाओ अब नालायक, सुबह हो गई है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल हमेशा उल्टा होता है, राइट। सेकेंड है बेटा, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो साइज ऑब्जेक्ट की थी वही इमेज की साइज है आपकी, राइट। थर्ड इज लेटरली इन्वर्टेड। व्हाट इज लेटरली इन्वर्टेड? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज ये तुम्हारे पास मिरर है, तुम इधर बी लिखो तो मी का उल्टा ऐसे इमेज दिखेगा, दिखता है कि नहीं दिखता है? जो ऑब्जेक्ट में लेफ्ट है वो इमेज में राइट हो जाएगा। शीशे के सामने खड़े हो ना तुम अभी आज, और जाके देखना, कोई भी और शीशा हो
और शीशे के बगल कुछ यहाँ रखना, मान लो ये एक तुमने ऐसा कोई स्ट्रक्चर रखा, तो इमेज तुमको ऐसे दिखेगा, राइट? तो दैट इज कॉल्ड लिटरल शिफ्ट। See, left part of the candle appears on the right and its right part appears on the left. This is known as lateral inversion. So in the plane mirror, whatever we are getting, that is a plane or laterally inverted image. Now, image distance and the object distance are same and perpendicular from the mirror. That means object की जो distance आपके mirror से है, वही distance आपके mirror से image की हो, ठीक है? These are the basic properties of our object of the image formed by the plane mirror. I think यहां तक कोई इरेक्ट मतलब सीधा सीधा। अभी यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? वर्चुअल इरेक्ट में सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर इक्वल फ्रॉम द मिरर, और लिटरली इन्वर्टेड। इन चारों पॉइंट में कोई समस्या किसी को? एनीवन हैज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो, फटाफट जल्दी से बताओ अगर कहीं कोई समस्या है तो। किसी को कोई समस्या नहीं है? क्या बात है, इतना अच्छा पढ़ लिया आपने। डिस्टेंस रिलेटेड पॉइंट, ओके गार्गी सी, जो आपने घर में देखा हो, आप जब शीशे के सामने जितने दूर खड़े होते हो, आपका इमेज भी उतनी ही दूरी पर होता है कि नहीं होता? अगर आप शीशे से 50 सेंटीमीटर पर हो, तो इमेज भी 50 सेंटीमीटर पर होता है कि नहीं होता? तो दैट इज कॉल्ड कि इमेज की जो डिस्टेंस है मिरर से, वही डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट की मिरर से। दैट मींस द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द मिरर एंड द डिस्टेंस ऑफ एन इमेज विद द मिरर विल बी इक्वल। और एक चीज और बता दो मजे की बात, यहाँ पे अभी आपको यहाँ नहीं लिखा है, वो हायर क्लास में मिलेगा। जिस स्पीड से मिरर की ओर हम दौड़ेंगे, हमारा इमेज भी उसी स्पीड से मिरर की ओर दौड़ता है। आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि दूर गैलरी में कोई बच्चा शीशे की ओर दौड़ रहा हो, तो उसका इमेज भी शीशे में देखते होगे आप कि आगे की ओर आता हुआ दिख रहा है। अनिकेत थोड़े कपड़े पहन लो, ठंड लग जाएगी, हीरो बन के घूम रहे हो, हैं? साउथ का पुष्पा बन के घूम रहा है, कपड़े नहीं बनियान पहन के बैठा हुआ है। चलो, तो आई थिंक अभी चीजें क्लियर है सबको, मजा मा समझ में आ गया सभी को? एक जल्दी से रिस्पॉन्स दो मुझे। आराध्य, हाँ बिल्कुल। वो स्फेरिकल मिरर्स है बेटा, स्पेशल टाइप के मिरर्स नहीं है। स्फेरिकल मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अनन्या, एरेक्ट मतलब सीधा। जैसे तुम्हारी खोपड़िया ऊपर है ना, तो मिरर के सामने जब तुम खड़े हो तो तुम्हारी खोपड़िया तुम्हें ऊपर ही दिखेगी, है ना? पैर ऊपर नहीं दिखेगा। तो अगर कोई ऐसा मिरर बन जाए जिसमें पैर ऊपर दिखे, खोपड़ी नीचे दिखे, तो उसको कहते हैं इन्वर्टेड इमेज। समझ रहे हैं? तो ऐसे बहुत सारे मिरर्स हैं, जैसे कॉनकेव मिरर है, जहां पर आपको इन्वर्टेड इमेज देखने को मिलता है, ठीक है? तो वो अभी आपका ना 9th 10th में आएगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स का चक्कर। परेशान मत हो। लेटरल इन्वर्जन, लेटरल बेटा बेटा ऐसा है, देखो जैसे ये हाथ है मेरा, अब मान लो यहाँ पे मिरर है, तो मिरर के पास जाओगे तो हाथ ऐसे दिखेगा, इसी को कहते हैं लेटरल। अभी घर में करना ना, आपके पास जो अलमारी है, उस अलमारी के पास कोई ऑब्जेक्ट रखना, सामने से ऐसे मोड़ के अल्फाबेट देखना लिखा हो, जहां पे लिखा हो, मान लो पेप्सोडेंट लिखा है, आप शीशे के सामने पेप्सोडेंट रखना, इमेज देखोगे उल्टा पढ़ के आएगा पेप्सोडेंट, ठीक है? दैट इज ओके। तो टाइम अप होने वाला है बेटा, अभी मैं लीव लेता हूँ, और कल सुबह फिर मिलते हैं। और ये वीडियो अभी अपलोड हो जाएगा वीडियो, और लिंक आज मैं शेयर कर दूंगा, क्योंकि बैकग्राउंड में शैम्पोर्ट लगा दिया है। कल चूंकि कुछ और लगा था तो वो उचित नहीं था शेयर करना, बट अभी मैं शेयर कर दूंगा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद 1 बजे के बाद, ठीक है? चलो, गुड डे ऑल ऑफ यू, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच इन द क्लास, बाय।